Assalamu alaikum, this is Nurulan Ali, and you are watching Meet the Boss, a program that takes you through the journey of successful Pakistani individuals so that you keep getting your daily dose of motivation and you can become the boss of your life. Deeply rooted in their belief of supporting established and emerging labels as well as creating spaces for meaningful conversations, Fashion Pakistan Lounge stands as a collective representation of more than 50 brands under an open concept designed communal roof. This meticulously curated list of brands offers a generous range of products to anyone looking for a breath of fresh air. Taimur Ajmal, the founder of Fashion Pakistan Lounge, is spearheading the movement towards a more inclusive community in Pakistan's dream of fashion and retail. Taimur joined his ancestral business at quite a tender age. The family-led company manufactured for international clothing brands for more than 150 years. However, the keen shopper in Taimur was disappointed by the bland offerings by fashion retailers. It set the wheels in motion for the launch of Fashion Pakistan Lounge, a multi-label design-driven store that opened its first outlet in 2010. A decade later, Taimur is successfully running Fashion Pakistan Lounge along with his own brand, Jeem, that is offering quality fashion pieces with excellent value of money. Assalamualaikum, welcome back to another episode of Meet the Boss, and I'm so pleased to be joined by Mr. Taimur Ajmal, who is the founder of Fashion Pakistan Lounge, that is a multi-label retail store located in the heart of Lahore. Thank you so much, sir, for joining us. Pleasure is all mine. So kind of you. So just to kick this conversation off, we would love to know about you, your journey, and the motivation behind this concept, because obviously it's a great concept. और आप एक मल्टी लेबल स्टोर लेके चल रहे हैं, इसके पीछे क्या एक आइडिया था? इसका आइडिया के लिए मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया. एक्चुअली हम लोगों का जो एंसेस्ट्रल बिजनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, जो हम तकरीबन 125 साल से कर रहे हैं कि स्टिल रन्स इन द फैमिली. सो एनी हाउ व्हेन आई जॉइंड द बिजनेस, तो हम इनिशियली तो मैंने अपना एंसेस्ट्रल बिजनेस ज्वाइन किया, बट साथ ही फिर वो जिस तरह यंग बच्चों को एक ख्वाहिश होती है कि हम अपना कुछ स्टार्ट करें, तो एक फैक्ट्री हम लोगों ने, गारमेंट फैक्ट्री, एक्सपोर्ट की नेटवेयर फैक्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट की. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद द वेरियस वेल नोन हाई स्ट्रीट ब्रांड्स ऑफ यूरोप एंड यूएसए, जिसमें H&M, वॉलमार्ट, न्यू लुक और काफ़ी सारे वेल नोन ब्रांड्स इसके अलावा थे. सो बेसिकली आई स्टार्टेड अप डूइंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर ऑल दीज ब्रांड्स. उसके बाद वो काफ़ी अर्सा वो काम करते रहे, तो फिर एक ख़्याल आया कि क्यों ना कि रिटेल के अंदर कुछ स्टार्ट किया जाए, बिकॉज ऑफ कोर्स जिनके साथ काम कर रहा था ऑलरेडी वो दे वर ऑल द रिटेलर्स इन द एंड, दे वर इम्पोर्टर्स एंड प्लस द रिटेलर्स एज वेल. सो आई न्यू द पोटेंशियल ऑफ द रिटेल मार्केट एज वेल. सो पाकिस्तान सिंस वॉज ग्रोइंग ऑल्सो, इट्स so I thought of venturing into the retail side as well, and then I started up. I basically took a franchise of a couple of brands, clothing brands. एक children clothing का company थी, उसको initially I took the franchise of that thing. और franchise का ख्याल इसलिए आया कि क्योंकि हम 100 साल उस टाइम तो 100-125 साल से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ मुंसलिक थे. सो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंचाइज, एजेंसी, एक ही चीज़ के 3 मुख्तलिफ नाम हैं. सो इनिशियली तो थॉट उस चीज़ की आई, वहाँ से खैर वो जर्नी स्टार्ट किया. तो देन 2 साल वो फ्रेंचाइजेस की, लेकिन कुछ उस टाइम मुल्क के हालात डॉलर के साथ और हमारी डेप्रिसिएशन करेंसी की, जो अनफॉर्चुनेटली एक हमारा एक डायलेमा है कि स्टेबिलिटी नहीं है हमारी पॉलिसीज़ में और हमारी मईशत के अंदर. तो खैर उस चीज़ को सामने रखते हुए आई थॉट कि इट्स बेटर कि इम्पोर्ट की सब्सटीट्यूशन की जाए, और इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टिंग अ प्रोडक्ट, व्हाई नॉट टू गो इनटू समथिंग जो हम यहाँ खुद से यहाँ की लोकली मेड प्रोडक्ट हो. तो इस तरीके से आई केम इनटू दिस बिजनेस. देन जब ये ध्यान आया, फिर जिस तरह कहते हैं कि इंसान अल्लाह कोई ना कोई रास्ता आपके लिए खोल देता है, तो आई मेट विद माहीन खान. Maheen Khan, you know, she's one of the top designers of Pakistan. At that time, she used to head
द काउंसिल ऑल्सो विच द फैशन पाकिस्तान काउंसिल, और उस काउंसिल में माहीन खान, दीपक परवानी, शुमाइल अंसारी, नोमी अंसारी, ये सारे उसके मेंबर्स थे। तो बेसिकली आई कोलैबोरेटेड विद दैम, और फिर ये स्टोर स्टार्ट किया गया। बेसिक मकसद प्लेटफॉर्म मुहैया करना था, ना सिर्फ एस्टेब्लिश डिज़ाइनर्स को बल्कि जो यंग और इमर्जिंग डिज़ाइनर्स हैं। दैट वाज द की बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट कि जी हम एक प्लेटफॉर्म दें। बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग डिज़ाइनर्स आ रहे थे जिनके पास अपना कोई रिटेल का एक्सपीरियंस नहीं था, वन, एंड सेकेंडली स्पीकिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू वाज वेरी वेरी कॉस्टली फॉर देम। सो उस लिहाज से ये चीज़ का स्टार्ट लिया गया। So that was the concept. So that was going to be my second question कि are you open to young designers emerging या फिर आपके पास established brands ही होते हैं? नहीं, हम लोगों के पास तो जी डे वन से इट्स अ मिक्स ऑफ डिज़ाइनर्स। हमारे पास मेजॉरिटी आप जिनको हम कहें वो इमर्जिंग डिज़ाइनर्स हैं, मेजॉरिटी इमर्जिंग डिज़ाइनर्स है। यंग डिज़ाइनर्स जिनको हम कहते हैं स्कूल के फैशन स्कूल के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम तो टू दैट एक्सटेंट हम लोग ये कि उनको इस तरीके से हम लोगों ने फैसिलिटेट किया बीच में, जिनके अंदर पोटेंशियल था, जो शौक़ रखते थे, उनको तो जो वी हेल्प देम आउट टू द एक्सटेंट। हाउ डू यू गेज दैट पोटेंशियल? मतलब ऑब्वियसली मार्केट में इतने सारे फैशन ग्रेजुएट्स हैं और हर कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता होगा, आई एम श्योर। तो आप क्या आपके एक सर्टेन चीज़ देखते हैं व्हेन यू वांट टू वर्क विद अ पर्टिकुलर पर्सन कि सच में ये क्वालिटीज़ हों फिर ये हमारे साथ काम कर सकता है? यंग डिज़ाइनर्स की बात जनरली तो जी देखें, आउट ऑफ एक्सपीरियंस अब हम लोगों को आइडिया हो जाता है। सबसे पहले जो चीज़ मैं देखता हूँ वो चीज़ उनकी विलिंगनेस, कि हाउ विलिंग वर्कर्स दे आर। बिकॉज बहुत सारों एट टाइम्स ये भी फीलिंग आती है कि बिल्कुल शौकिया एक चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो कंपेटिटिव मार्केट है, अनलेस आप और चाहे वो ये बिज़नेस हो या कोई और बिज़नेस हो, दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। जब तक आप उसमें आपके अंदर वो चीज़ ना हो तो आप नहीं इसको कर सकते। सिर्फ शौक़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वही काम अगर आप शौक़ भी आपका हो, आपका प्रोफेशन आपका शौक़ बन जाए, तो उससे बेहतर प्रोफेशन कोई नहीं होता। पैशन एंड प्रोफेशन, यस। लेकिन हम देखते हैं नॉर्मली यंगस्टर्स पे फेज़ आता है फैशन डिज़ाइनिंग का, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का, फिर वो उसको छोड़ देते हैं। ये जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब सर्टन हम लोगों ने डिज़ाइनर्स में ये चीज़ देखी थी। इस टाइम मुझे लगता है कि काफ़ी मैच्योरिटी आ गई हुई है, बिकॉज अब मोस्टली जो हम लोगों को अप्रोच करते हैं वो दे आर प्रोफेशनल्स, एंड नाउ दे नो दैट इट इज़ अ डिमांडिंग बिजनेस, सो दे हैव टू बी ऑन देयर टोज। अदरवाइज मुश्किल है इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अब ये काम करना। अच्छा, आपने बताया कि आपने 2010 में ये स्टार्ट किया था, राइट? आई एम श्योर तब भी सोशल मीडिया था, लेकिन ई कॉमर्स का ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था, मैं सुना। हाँ जी। अब एकदम से जो ये पैराडाइम शिफ्ट आया, पर्टिकुलरली पोस्ट पेंडेमिक ईरा में। हाँ जी। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि बहुत से डिज़ाइनर्स ने जो है रिजॉर्ट किया है सोशल मीडिया पे, और उसकी वजह से वो स्पेस की तरफ, लाइक फिजिकल स्पेसेस की तरफ अब थोड़ा सा कम आ रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि इस मल्टी लेवल वाला जो एक हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक आइडिया है, इस पे भी कोई असर पड़ा है नेगेटिव? क्योंकि वैसे तो फिजिकल शॉप्स के जो ट्रेंड है, उसका रुझान है, उसकी डिमांड में काफ़ी हद तक कमी आई है, लोगों ने ऑनलाइन पेजेस बना लिए एंड दे आर रनिंग देयर सक्सेसफुल बिजनेस। इस कॉन्सेप्ट में भी, इस आइडिया में भी, इस मॉडल में भी कोई आई है? नहीं, इस तरह वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत फ्लरिश किया है पोस्ट कोविड। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई है, और लोगों में ट्रस्ट, पहले प्रीवियसली ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो एक सर्टन प्राइस ब्रैकेट से ऊपर जाते हुए थोड़े से रिलक्टेंट हो जाते थे कि कहीं प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आ गई तो फिर वो हम कैसे उसको वापस करेंगे। लेकिन अब उस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट क्रिएट हो गया है, और वो नज़र आ रहा है विजिबली। लेकिन येट अभी भी रिक्वायरमेंट है सर्टन प्राइस ब्रैकेट के ऊपर जाते हुए डिज़ाइनर्स के साथ। ऑल्दो क्रेडिबिलिटी हमारे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स की बहुत अच्छी है, लेकिन येट क्लाइंट अभी भी थोड़ा बहुत रिलक्टेंट होता है कि एक बार हम फिज़िकली प्रोडक्ट को देख लें। सो उस लिहाज से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया। हाँ, वो वाली साइड ग्रो ज़रूर होती गई है, और मैं तो वैसे भी इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ
कि जितना कंपटीशन आता रहता है मार्केट एक्सपैंड करती रहती है, आप अपने आप को इवॉल्व करते रहो करंट सिचुएशन के साथ, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मार्केट में एक्सपेंशन आती जाएगी। हाँ, जहाँ आपने आपको बैलेंस नहीं किया, मॉडर्नाइज नहीं किया, तो अडेप्ट नहीं मार्केट कंडीशंस के साथ किया, देन यू विल बी अफेक्टेड। सही। रिसेंट आपने क्या एडिशन किया, किस ब्रांड को किया है अपनी असॉर्टमेंट में? हम लोगों के जी कॉन्स्टेंटली ये एक सर्कल चलता रहता है, उसमें हम लोग देखते हैं देयर आर सर्टन ब्रांड्स, ऑल्दो गॉड हैज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड कि हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो डे 1 से साथ थे और अभी भी वो साथ ही हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल जैसा मैंने माहीन खान का जिक्र किया, माहीन खान आज भी गुलाबों का ब्रांड हमारे पास है, नूरजहां बिलग्रामी कोयल के नाम से आज भी वो हमारे पास कर रही हैं, और इस तरह दूसरे वेरियस डिज़ाइनर्स हैं वो अभी तक कर रहे हैं। हाँ, सर्टन टाइम्स के ऊपर डिज़ाइनर्स की हम लोगों को भी शिफ्टिंग या चेंज हमें भी रिक्वायर्ड हो जाती है, बाज़ दफ़ा कोई इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है, किसी की कोई मजबूरी बन जाती है कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो मार्केट के अंदर साथ के साथ हमें एक नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस तो कराना होता है। बाज़ दफ़ा हम लोग भी देखते हैं अगर एक डिज़ाइनर नई प्रोडक्ट को या मार्केट के साथ अडेप्ट अपने आप को नहीं कर रहा विद चेंजिंग सिचुएशन, सो वी ऑल्सो रिक्वेस्ट देम कि आप या तो अपने आप को अडेप्ट करें अपकमिंग फैशन ट्रेंड्स के साथ, अगर नहीं तो फिर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी फिर किसी और को मौका दें, सो डैट काम इस तरह ही चले, क्योंकि रिटेल मार्केट है, एंड ऑफ द डे client is the king. Exactly. Whenever they come to the store, they want to see a new product, a different product, which is according to the current trends. So that's very important in the retail sector. But majority designers इस चीज़ को समझते हैं और वो अपने आप को साथ साथ चेंज करते रहते हैं। ठीक। आपने भी ट्रेंड्स की बात की, तो देखिए अगर ये कोई ब्रांड है, हर ब्रांड की एक अपनी फिलॉसफी होती है, उसकी ब्रांडिंग उसके किड जो है लाइक दे कैन प्ले विद द नैरेटिव अराउंड देयर प्रोडक्ट, राइट? यू आर डीलिंग विद डाइवर्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है, हर ब्रांड की, हर डिज़ाइनर की फिलॉसफी, एस्थेटिक्स सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन आपने उन सबको लाइक अंडर द वन रूफ जो है एक जगह इकट्ठा किया हुआ है, इसमें आपको कोई चैलेंजेस नहीं आते? नहीं, ये तो बल्कि उल्टा हम लोगों की सक्सेस ही है, हमारा जो USP है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, दिस इज़ और यूनिक सेलिंग पॉइंट, बिकॉज जब क्लाइंट आता है तो उसको अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट उधर मिल जाती है, बिकॉज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टोर के अंदर अराउंड 60 डिज़ाइनर्स जो स्टॉक कर रहे हैं, सो वी हैव गॉट कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट विद अस। जिस तरह आपने कहा कि हर की एक अपनी एस्थेटिक्स होती हैं, हर की एक अपनी सिग्नेचर होता है, सो अब क्लाइंट का भी मुख्तलिफ सिग्नेचर्स होते हैं। Exactly. जब वो अंडर द वन रूफ दे फाइंड 60 डिफरेंट डिज़ाइनर्स, तो उनको अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट मिल ही जाती है। सो ये एंड दिस इज़ आवर सक्सेस, सो दैट्स वाई स्पेशली जिस टाइम वो एक्सपैट्स पाकिस्तान आते हैं तो उनका जो फर्स्ट टॉप शॉप होती है वो हमारा FPL ही है। हाँ, तो वो बिकॉज दे से कि हमारे पास टाइम की कमी है, हम इंस्टेड के जी इंडिविजुअल स्टैंड अलोन स्टोर्स पे जाएं और मुख्तलिफ जगह पे जाएं, हम इधर आते हैं, इधर से आके हमें अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाती है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़, और कॉन्सेप्ट भी यही था कि वैरायटी होनी चाहिए कि जो हर टाइप के क्लाइंट के टेस्ट को केटर करे। दिस इज़ व्हाट इट इज़। करेंटली आप रिटेल इंडस्ट्री को कहाँ पे देखते हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसके, और आप क्या देख रहे हैं कि 5 साल में मज़ीद बेहतरी होगी या कुछ? देखिए जी, पाकिस्तान की मार्केट तो ग्रो कर रही है, जिस तरह हमारी पॉपुलेशन, इट्स अ पॉपुलेशन ड्रिवन इकोनॉमी, पॉपुलेशन भी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी भी एक्सपैंड कर रही है, सो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, अभी भी काफ़ी इसमें रूम है, काफ़ी पोटेंशियल है। यस, अगर इकोनॉमी में जो इंस्टेबिलिटी आती है, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही मेजरली हमारी इकोनॉमी में कुछ शॉक्स एट टाइम्स हर दूसरे तीसरे साल आ जाते हैं, वो चीज़ ऑफ कोर्स एक हैम्पर करती है एक ग्रोथ को, एक सेंटिमेंट को, बाइंग पास को। अब ओवर द पीरियड जो इन्फ्लेशन हुई है, जो हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है, उससे बहुत इफ़ेक्ट आया है। ओवरऑल कंज्यूमर की बाइंग पावर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, लेकिन अब हम पाकिस्तानी शायद रेजिलिएंट हो गए हैं इस चीज़ के अंदर, हम अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं,
जितना ऑब्जॉर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं कि कम से कम पास ऑन करें टू द जनरल क्लाइंट्स प्राइस फैक्टर को। वो हम अपनी कोशिश तो करते रहते हैं, तमाम डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, और लेकिन एंड ऑफ द डे सर्टन प्राइस फिर आगे पास ऑन भी करनी पड़ती है। येट बट इट्स एन ऑन गोइंग, मैं तो कहता हूँ कि ये जहाद है पाकिस्तान के अंदर। बिजनेस जो है वो एक जहाद है, और वो जहाद हमारे सक्सेसफुली इधर का एंटरप्रेन्योर वो कर रहा है, ऑल्दो वो ब्लेम भी होता है उसके ऊपर, डिफरेंट नाम भी उनके पास लिए जाते हैं। बट एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि एक पिवट जो होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, वो उसकी बिजनेसेस होते हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा होता है। जिस मुल्क के अंदर और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ बेइंतहा पॉपुलेशन है, हम इस किस्म के लेबर इंटेंसिव बिजनेसेस के अंदर जाएं, जितना जा सकते हैं उतना ही हमारे मुल्क की बेहतरी है। आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट आप ये देख लें कि आप सर्विस सेक्टर में जाएंगे, आपको एक लिमिटेड स्टाफ रिक्वायर्ड है। आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ स्काई इज़ द लिमिट बन जाती है, बिकॉज इट्स अ लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। तो हमें तो इनकरेज करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इस किस्म के बिजनेसेस को इनकरेज करें जहाँ लेबर या जहाँ ह्यूमन रिसोर्स जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। सो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द कंट्री आल्सो। सही। अभी रिटेल इंडस्ट्री हमारी बहुत चैलेंजेस में गुजरी है, बहुत सी हमारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हुई हैं या रीलोकेट हुई हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। आप कोई ऐसी रिकमेंडेशन जो आप गवर्नमेंट को देना चाहें इस बारे में? हाँ, गवर्नमेंट को जी बस एक ही होगी कि आप पॉलिसीज़ के अंदर अपनी एक स्टेबिलिटी लेके आएँ, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करें। बिकॉज़ आपका जब तक एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ और उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं हो सकता। ये नहीं है कि आज आपने एक बिज़नेस को प्लान किया है, 6 माह के बाद या 2 साल के बाद बाय द टाइम वो अप एंड रनिंग हुआ है तो आपको पता लगे जी पॉलिसी चेंज हो गई है। तो जितना आपकी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होंगी, उतना ही आपका पहले लोकल बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। लोकल बिजनेसेस को देखते हुए हमारे, जिसको हम FDIs कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो फिर आएंगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अदरवाइज नहीं आ सकती। वो सबसे पहले दे टेस्ट द मार्केट, वो लोकल बिजनेसेस को देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। यस, सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान। हमारे तो पिछले 30-40 साल के अंदर अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पे तो बहुत कम वर्क किया गया। हमारे अंदर बड़ी रेजिलियंस है, हमारी कौम के अंदर बहुत पोटेंशियल है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम मैं बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, इनको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दे दें, डायरेक्शन दे दें, वी कैन डू वंडर्स, वी कैन स्टिल डू वंडर्स। जो इस टाइम मैं तो इस तरह कहूँगा, एक हर इंसान इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली डिस्करेज हुआ है आजकल के हालात के अंदर। सो आप देखेंगे विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स with the youth, vibrant youth we have, और हम लोग we can do wonders. And we will get out of this situation. There is absolutely no point कि हम इससे overcome नहीं कर सकते। हमने पहले भी किया है बहुत दफ़ा। हाँ जी, करते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कर लेंगे इंशाल्लाह। और so coming back to you, how do you keep yourself informed with the market trends? क्योंकि obviously ये भी overnight evolve हो रहे होते हैं, रोज़ कोई नई चीज़ आ रही होती है। हाँ जी, विद द सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा ये आसान भी हो गया और क्विक भी हो गया है कि चेंजेस जो हैं वो इतनी, पहले जो हमें लगता था कि ट्रेंड की चेंजेस के अंदर टाइम लगता है और फ्रॉम एक सर्टन ब्रैकेट से नीचे आते एट टाइम्स 2 साल लग जाया करते थे। अब तो विद इन मंथ्स अगर एक फैशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो ट्रिकल डाउन उसका इतनी क्विक होता है कि आपको यू हैव टू बी ऑन द टोज ऑल द टाइम एंड यू हैव टू इन्फॉर्म द डिज़ाइनर्स। बाज़ दफ़ा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो खुद मैन्युफैक्चरर्स इस तरीके के नहीं हैं, तो हम साथ डिज़ाइनर्स को भी अपने अपडेट करते रहते हैं। ऑल्दो वो खुद भी बहुत वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सो इतना अब इशू नहीं आता क्योंकि वो विद सोशल मीडिया दे आर ऑल्सो वेरी इन्फॉर्म्ड। सो ये इतना कोई, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट दीज डेज नाउ। True that.
अच्छा, आप पहले आपने बताया कि आपने जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद आपने यहाँ पे लोकल ब्रांड्स को एक स्पेस दी, फिर आपने अपना एक ब्रांड बनाया जीम के नाम से। जी। इस जर्नी के बारे में कुछ बताएं हमें। अच्छा, ये बड़ा जीम के इंटरेस्टिंग था पीछे, जी। उनके नाम भी इसका बड़ा हाँ जी, इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, बस इसका नाम जीम से बेसिकली बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जीम का मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली जुनून है और जज्बा है। अच्छा, मुझे लगा शायद आपका सरनेम नहीं, है। ये किसी का कोई ना, मेरी फैमिली में कोई जीम के नाम से या जे से या जीम से किसी का कोई नाम स्टार्ट नहीं होता। इसका बेसिक है जुनून इसके पीछे, कि जी एक जज्बा था कि जी हम लोगों ने, और वो जज्बा क्या था कि एक सर्टन टाइम के ऊपर हम लोगों ने रियलाइज़ किया, बिकॉज इट्स अ डिज़ाइनर स्टोर, और डिज़ाइनर स्टोर्स के ऊपर आपको पता है प्रोडक्ट थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं। सो हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी कि जैसे जैसे पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़नी शुरू हो गई कि प्रोडक्ट की प्राइस रेंज बहुत बढ़ जाती थी, अच्छी प्रोडक्ट की पर्टिकुलरली। सो वी थॉट के, और हमारे पास जो डिज़ाइनर्स काम कर रहे थे, क्योंकि वो एक लार्जर स्केल के ऊपर मैस मार्केट के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो उनके ओवरहेड्स भी ऑफ कोर्स ज़्यादा थे। सो वो उस चीज़ को उतने कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। मुझे जो प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस था, जैसा मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट्स का, तो उसको मैंने कहा कि जी वाई नॉट, नाउ इट इज़ द हाई टाइम आई शुड स्टार्ट माई ओन मैन्युफैक्चरिंग। और उसको करते हुए हम लोगों ने डिज़ाइनर प्रोडक्ट एट एन अफोर्डेबल रेंज इंट्रोड्यूस की। सो डे वन से हम लोगों की जो फ़िलॉसफी थी वो यही थी कि प्रोडक्ट शुड बी अ डिज़ाइनर प्रोडक्ट बट एट एन अफोर्डेबल प्राइस ब्रैकेट, सो डैट हमारे वो तबका भी जो अच्छी चीज़ लेने की ख्वाहिश रखता है वो उसको ख़रीद पाए। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस ब्रांड। ज़बरदस्त। सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड कि आप इतने नई नई चीज़ें करते रहते हैं? लाइक आई एम श्योर हर इंसान की तरह आप भी कभी ड्रेन्ड आउट फील करते होंगे, लेकिन एज अ बॉस आप क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है? बड़ा ये आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में जी एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी काम ही बेसिक मोटिवेशन होती है। वो जब तक काम करता रहता है वो मोटिवेटेड रहता है। लेकिन कभी आपके ग्लूमी डेज आते होंगे और वो देखें जी, डाउन पीरियड हर इंसान की ज़िंदगी Exactly. के अंदर आता है। वो ऐसे नहीं, हर एवरी डे इज़ लाइक, जिस तरह कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट अ संडे वाली सिचुएशन होती है। बट एंड ऑफ द डे इट इज़ द कैपेसिटी हाउ क्विकली यू गेट आउट ऑफ दैट फेज। सो बेसिकली स्पीकिंग मुझे तो मेरा काम मोटिवेट करता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई लव क्रिएटिंग वेरियस थिंग्स, दैट इज़ व्हाट गिव्स मी एन इंस्पिरेशन। So how does a typical day in your life look like? सुबह उठते हैं, क्या करते हैं, पूरी हमें जर्नी बताएं। बस जी सुबह उठ के तो नमाज, नेचुरली सबसे पहले नमाज पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर डेली रूटीन, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग इज़ माई मी टाइम एक्चुअली। आई प्लान एवरीथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, एंड व्हेन आई कम टू द ऑफिस आई गिव क्वालिटी टाइम। मैं जितना भी वक्त काम के ऊपर आता हूँ मैं क्वालिटी टाइम उसके अंदर अपना सर्व करता हूँ। हाँ, मेरे अंदर जो ख़राबी है वो मैं माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा करता हूँ। अब वो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो उस माइक्रो मैनेजमेंट से निकलूँ और लार्जर उस स्केल के ऊपर आऊँ। बट वो एक प्रॉब्लम है कि हर काम अपने हाथ से करने का शौक़ है कि जी हर काम के अंदर, हाँ मैं परफेक्शनिस्ट हूँ कि हर छोटी बड़ी डिटेल को जो है वो साथ देखते रहो कि कोई चीज़ इग्नोर ना हो। और शायद वो मेरे काम ने मुझे कुछ सिखाया भी डे वन से ऐसे था। आई स्टार्टेड अप वेरी यंग, तो क्योंकि एक्सपोर्ट्स के काम थे और वहाँ टॉलरेंसेस जो थी वो बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। हमारी लोकल मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा हैं, बट वो जब आप यूरोप से काम करते हो वो बहुत ज़ीरो टॉलरेंस लेवल पे काम कर रहे होते हैं। सो वो दे टीच यू अ लॉट। सो यू हैव टू गो इनटू अ माइन्यूट डिटेल्स। तो उस चीज़ की एक आदत सी पड़ गई है जिसको मैं बदलना भी थोड़ा बहुत चाहता हूँ। सही, ठीक हो गया। फिर आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, उसके बाद काम पे आते हैं। फिर बस ये काम के ऊपर आए, काम से फिर उसके बाद मैं व्हेन आई गो होम और फिर एक्सरसाइज थोड़ी सी की, वॉक की, एक्सरसाइज की और वालदा के साथ वक्त गुजारा। बच्चे मेरे बाहर आजकल पढ़ रहे हैं, तो वो वाली अब सिचुएशन भी नहीं है। बेगम होती है, मैं होते हैं, वालदा होती है,
क्वालिटी टाइम हाँ। स्पेंड करते हैं। जी। सही। एज अ बॉस आप किस तरह के बॉस हैं? अच्छा, ये तो मुझे आपको मेरे ख्याल में मेरे जो कॉलीग्स हैं नीचे जो स्टाफ है नहीं, उससे पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप किस तरह के बॉस हैं? उनसे तो हम एक अदर साइड ऑफ स्टोरी पूछेंगे ना। नहीं जी, इंसान तो अपने आप को ठीक ही समझता है, लेकिन आई थिंक आई एम अ लिटिल सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। हाँ। ठीक हो गया। जो अभी हमारे इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी न्यू टू द इंडस्ट्री हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक बॉस बनने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इनमें? सबसे पहले तो जी वन हैज़ टू वर्क हार्ड. There is no secret to success and there is no shortcut to success also. The only secret is one should work hard. नसीब अक्सर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हम लोग नसीब के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि वो सबसे बड़ा फैक्टर है, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे वो फिर नसीब भी आपके साथ नहीं देंगे। मेहनत करोगे तो आपके नसीब भी साथ देंगे। एंड देन यस, डायरेक्शनलेस मेहनत नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी उसकी डायरेक्शन आपकी सीधी होनी चाहिए। तो आजकल के लेकिन यंग बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं जी, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। या हाँ, जो एक चीज़ मैं उनमें लैकिंग देखता हूँ वो थोड़ी मेहनत वाला फैक्टर मैं लैकिंग आजकल देख रहा हूँ, वो उनको अपने आप को चैनलाइज करना है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। मैंने अपने इस टोटल जर्नी के अंदर जो विलिंग वर्कर मैंने देखा है उसको मैंने इन द एंड सक्सेसफुल पाया, चाहे वो मेरे एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो डिज़ाइनर्स थे, चाहे जो भी था, हूएवर वाज अ विलिंग वर्कर जिसने अपने काम को अपना काम समझ के किया, उसको सक्सेस लाजमी मिली है। मैंने तो यही लर्न किया इस सारी जर्नी के अंदर। स्पीकिंग ऑफ सक्सेस, हाउ डू यू डिफाइन इट? सक्सेस, अच्छा, नाउ इसमें इंटरसब्जेक्टिव टर्म है, लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा। अब देखें, सक्सेस भी दो तरह की है। एक है आपकी जो हकीकी सक्सेस है, रूहानी सक्सेस और दुनियावी सक्सेस। मटेरियलिस्टिक, ठीक। हाँ, अगर तो आप उसको अगर तो वो वाली सक्सेस आपको मिल जाए तो फिर तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। दूसरी सक्सेस के अंदर भी इट्स नॉट जस्ट मटीरियल सक्सेस को मेरी नज़र में इट्स एक टेंजिबल है और एक इनटेंजिबल है। जो आपकी जो दोनों चीज़ें जब तक मिलेंगी नहीं, आप यू कांट से कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। पैसा और मनी और मटेरियल वेल्थ इज़ नॉट द सक्सेस मेरी नज़र के अंदर। इसके अंदर आपकी मुआशरे में इज़्ज़त क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपका बिहेवियर क्या है, आपका इखलाक क्या है, आपका अपने और सबसे ज़्यादा आपका अपने स्टाफ के साथ क्या इखलाक है, क्या बिहेवियर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है। आपके पीछे लोग अगर आपकी तारीफ़ कर रहे हैं तो वो आपकी सक्सेस है। आपके सामने पैसे वाले के तो हर के सामने लोग कर ही देते हैं, पीछे क्या आपकी हो रही है, तो दैट इज़ द सक्सेस मेरी नज़र के अंदर। समझ। सो फार आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है जो आपको लगता है कि अच्छा ये मैंने अचीव कर लिया, नाउ आई एम गुड? मेरे ख्याल में जी, जहाँ इंसान ये समझ ले ना कि ये मेरी मैंने सब कुछ अचीव कर लिया है, या मेरा यही मेरी बार थी, आपका थ्रेशोल्ड आप एक सर्टन अगर अपना बना लो तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है सितारों से आगे जहाँ और भी है। लेकिन कोई एक ऐसा इवेंट या कोई ऐसी चीज़ जो आपने अचीव की और आपको लगे कि अच्छा ठीक है, ये दिस इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू? देखिए जी, ये रिटेल के अंदर मेरा आना मेरे ख्याल में जो था, दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, दिस साइड ऑफ द बिजनेस। सो ये भी, हाँ, बेशुमार चीज़ें हैं जी। आपको रिग्रेट्स तो सारी ज़िंदगी रहते हैं, इंसान को अल्लाह ने बनाई है ऐसा है। आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? हाँ, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट शायद ये है कि अगर आई शुड हैव done some job initially before joining my own business. I should have worked for somebody. I should have taken the experience first before starting up my own thing. And why do you think so? क्योंकि आप जितने यंग होते हो आप उतनी मिस्टेक्स करते हो, आप अपनी चीज़ के तो खुद बॉस बन जाते हो ना। एक सर्टन एज के अंदर एक 19 साल का बच्चा अगर अपनी उस चीज़ का बॉस बन गया है तो वो फिर एट टाइम्स गलत भी हो जाता है। आप सर्टन मिस्टेक्स वो जो आप अवॉइड कर सकते हो वो आप कर जाते हो आउट ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से।
सो वो है कि एक्सपीरियंस लेके इंसान अपने काम के अंदर आए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है मेरी नज़र के अंदर। नाइस। कोई एक ब्लॉक, क्रिएटिव ब्लॉक भी आता होगा आपके माइंड में कभी कभी कि आप लाइक आपको लगता है कि रुक गया है कुछ, इसको कैसे आप कोप अप क्या करते हैं, लाइक आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है व्हेन देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ चैलेंज, चाहे वो क्रिएटिविटी में हो चाहे वो बिजनेस में हो? आप आई नीड टू गो ऑन अ वेकेशन देन दैट्स नाइस। कि हाँ जी, तो आई टेक अ लिटिल टाइम ऑफ एंड देन आई गो ऑन अ वेकेशन फॉर अ कपल ऑफ डेज प्रॉबली। तो आपका मैं रिलैक्स फिर फेवरेट रिलैक्स कर जाता हूँ। मुझे वेकेशन के लिए जी कोई ये नहीं कि मैं मुल्क से बाहर ही जाऊँगा तो मुझे वेकेशन चाहिए। माई बेडरूम कैन बी माई वेकेशन ऑल्सो। नाइस। सो मतलब आपने comfort आई लाइक डूइंग गार्डनिंग। मैं इस किस्म की चीज़ें फिर कर देता हूँ फॉर अ डे और सो डैट एक ब्रेक आ जाए। तो चलें, ज़बरदस्त। सो बिफोर वी कंक्लूड दिस कॉन्वर्सेशन, हमारे पास कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एट व्हाट एज डू यू वांट टू रिटायर? एट द टाइम ऑफ डेथ। व्हाट स्केयर्स यू द मोस्ट? अल्लाह ऊपर से कभी नीचे ना लेके आए। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. Very difficult to do that. I'll rather would like to pass this question Okay. because One thing you hate about your work? it's very demanding. It's very demanding and challenging because आपको at times उनके साथ डील करना पड़ जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें भी कसूर हम लोगों का है कि हमने अपनी आवाम को तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्डल्स इस काम के अंदर क्रिएट होती हैं। पीपल डीलिंग में नॉर्मली? हाँ, आपको अपने स्टाफ डीलिंग के अंदर। सही। क्योंकि वन थिंग यू लव अबाउट योर वर्क? आपको कुछ नया क्रिएट करने को मिलता है। नाइस। इफ यू कुड ट्रेड लाइव्स विद एनीवन फॉर अ डे, हु वुड इट बी एंड व्हाई? नहीं, आई थिंक You're good, you're I'm happy? good with it. Nice. Last item you purchased? Last item I purchased, I think I'm fond of shopping, so Oh, you कोई are. क्लोथिंग में कुछ लिया होगा। Nice. iOS or Android? Apple. Okay. What fashion trend do you just not get? Like ये क्या चीज़ है, क्यों है ये? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जी जो आपको समझ में नहीं आती, बट एंड ऑफ द डे वो फिर चल रही होती हैं। ठीक। Your favorite designer? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इसीलिए तो डाला हमने। मुझे माहीन खान का काम बड़ा पसंद है, बड़े मिनिमल काम होता है उनका, बट ये आपकी एक पर्सनल लाइकिंग है, हर इंसान की अपनी लाइकिंग है। शुमाइल का काम अच्छा है, बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिनका काम बहुत अमेजिंग है। Politically correct answer. ठीक हो गया। Your hobby? गार्डनिंग एंड कुकिंग। Nice. Your workout preference? वॉक में ज़्यादा करता हूँ। Nice. Favorite politician? छोड़ दें जी, बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, ठीक हो गया। लेकिन पठानों को आजकल हर कोई पसंद कर रहा है। हम समझ गए, आप जहाँ पे इशारा कर रहे हैं वो समझ में आ गई। A mistake you made in life? बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जी, जो तो इंसान गलती और ख़ता का पुतला है। लेकिन कोई एक दो ऐसी बताएं जो आपको लगता है और आप जो न्यू कमर्स हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप करना चाहेंगे? सोच समझ के जी काम करना चाहिए, बिकॉज आप वो कहते हैं ना कि जी रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एग्जैक्टली। बट जब गिरा तो फिर एक दिन ना लगा। सो इट इज़ यू हैव टू डू थिंग्स कॉन्शियसली। ओवर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, बट कॉन्शियसली आपको ज़िंदगी के साथ अपना प्ले करना चाहिए। सही। सो डू यू थिंक कि इस बिज़नेस में पर्टिकुलरली क्रिएटिविटी ज़्यादा मैटर करती है या आपकी बिजनेस स्किल्स? मेरे ख्याल में जी एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है, जहाँ एक क्रिएटिव के साथ साथ आपकी बिजनेस स्किल्स भी साथ चल रही हो, तो इट बिकम्स अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। देन व्हेन आई से लीथल कॉम्बिनेशन, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस, बिकॉज जनरली जो मैंने देखा है इस बिज़नेस के अंदर इन पर्टिकुलर, कि जो क्रिएटिव है उसके अंदर बिजनेस स्किल्स की बहुत कमी है,
और जिसमें बिजनेस स्किल्स है उसमें क्रिएटिविटी की कमी है रेयर कॉम्बिनेशन और रेयर कॉम्बिनेशन ये बनता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे बीच में डिज़ाइनर्स की अगर मैं बात करूँ, सर्टेन डिज़ाइनर्स हैं जिनके अंदर वो ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अगर नहीं है तो वन शुड जॉइन हैंड्स विद द अदर पर्सन दैन, जो हम ठीक। लोगों के अंदर अगर एक क्रिएटिव है तो ही शुड जॉइन हैंड और विद सम आपका प्रोफेशनल। इसका इस मॉडल का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आप उनको जी एक्सपर्टीज दे रहे हैं, आप उनको हाँ प्लेटफॉर्म जी, दे रहे हैं, उनको क्रिएटर्स प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो अपना कॉन्सेंट्रेट करें अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्स के ऊपर। हम लोग उनका जो हमसे हो रहा है हम उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। जबरदस्त। विश यू गुड लक सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम Thank you and very I much for thoroughly coming enjoyed this over. conversation. Thank you very much for coming over. It's a pleasure. That's it for today, guys. I'll catch you guys in next episode in next week. Do check out our videos on our YouTube channel and don't forget to subscribe. Thank you so much.